ایس پی سول لائن چودھری اصغر علی کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مزنگ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی سپلائی ناکام بنا دی۔ خفیہ اطلاع پر ملزم کو مزنگ اڈا سے شراب فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ ملزم اظہر مسیح آن لائن آرڈر پر شراب کی بوتلیں ڈیلیور کرنے کے لیے آیا تھا۔ ملزم کے قبضہ سے 15 شراب کی برانڈڈ بوتلیں برآمد کر لی گئی۔ ملزم اظہر مسیح کے مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اصغر علی کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بننے والے منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبر کی جانب۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لودھرا سے ہمارے نمائندے اور نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف غلام مرتضیٰ پریار کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر شکیل احمد کی زیر صدارت ماہانہ کارکردگی بارے اجلاس۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر شکیل احمد کی زیر صدارت ماہانہ کارکردگی کا اجلاس ریسکیو سینٹر اسٹیشن میں منعقد ہوا، جس میں تمام تحصیل انچارجز اور مینجمنٹ اسٹاف نے شرکت کی۔ اجلاس میں ریسکیو سروس کو مزید مؤثر بنانے، آپریشنل معاملات میں بہتری لانے اور اسٹاف کی کارکردگی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف حکمت عملیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر شکیل احمد کا کہنا تھا کہ اسٹاف کی فزیکل فٹنس کو یقینی بنانے کے لیے فزیکل ٹیسٹ کا انعقاد یقینی بنایا جائے اور کمیونٹی سیفٹی ٹریننگ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اس ضمن میں سوموار کو انٹر تحصیل کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ریسکیو چیلنج کا انعقاد بھی کیا جائے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے عوام کو بروقت اور معیاری ایمرجنسی سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریسکیو سروس کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ ٹھٹہ سے انتہائی تشویشناک تعلیمی صورتحال۔ جنگ شاہی کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں 3 سال سے جاری تعمیراتی منصوبہ تاحال مکمل نہ ہو سکا، جس کے باعث 11ویں اور 15ویں جماعت کے سینکڑوں طلباء انکمپلیٹ کلاس رومز، ناقص مٹیریل اور انتظامی غفلت نے اسکول کے تعلیمی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹھٹہ سے اپنے نمائندے ممتاز علی سمو سے۔ جی ممتاز۔ جی بالکل، ٹھٹہ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جنگ شاہی جو علاقے کا واحد بڑا تعلیمی ادارہ ہے، بد انتظامی اور تعمیراتی تاخیر کے باعث شدید مسائل کا شکار ہے۔ 3 سال قبل 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے نئے کلاس رومز اور عمارت کی تعمیر شروع کی گئی تھی، مگر ابھی تک عمارت بنیاد سے اوپر نہ بن سکی ہے۔ عوامی پریس کلب ٹھٹہ کے صحافیوں نے جب منصوبے کا جائزہ لیا تو یہ بات سامنے آئی کہ تعمیر میں استعمال کیا جانے والا پتھر پرانا اور ناقص ہے، جبکہ کانٹریکٹر مبینہ طور پر ناقص مٹیریل استعمال کر رہا ہے۔ سیمنٹ کا ریشو بھی معیار سے بہت کم ہے، جو مستقبل میں عمارت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ محکمہ تعلیم کی غفلت پر والدین اور علاقے کے لوگوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عمارت کی عدم تکمیل سے طلباء کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء سائنس ہال میں عارضی کلاسز لینے پر مجبور ہیں، جبکہ اس سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے سائنس پیریڈز اور پریکٹیکل بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اسکول کے فوکل پرسن ارشاد پلیجو اور پرنسپل میڈم شاہ پارا کا کہنا ہے کہ سائنس لیب میں ضروری سامان کی شدید کمی ہے، جس کے باعث بچے عملی تجربے سے محروم ہیں۔ علاقہ مکینوں، والدین، اساتذہ اور سماجی شخصیات نے وزیر تعلیم، سیکریٹری تعلیم اور ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ناقص تعمیر، تاخیر اور مٹیریل کے غلط استعمال کا فوری نوٹس لیا جائے اور عمارت کی تعمیر جلد مکمل کرائی جائے۔ جی جانتے اوکاڑا سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سردار شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق ملزمان گرفتار۔ اوکاڑا حویلی لکھا خواجہ سرا پر تشدد میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ڈی ایس پی بصیر پور سرکل کی نگرانی میں ٹیم کی کامیابی۔ بارش علی اغوا تشدد کیس، فیاض الحسین اویس اور ناظم گرفتار۔ ملزمان نے نقدی، سونا اور موبائل چھیننے کا بھی اعتراف کیا۔ پولیس نے ملزمان کو قلیل وقت میں گرفتار کیا۔ ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ایسی اہم خبر محکمہ صحت ٹھٹہ کی جانب سے روبیلا اور خسرہ سے بچاؤ، بروقت ویکسینیشن اور عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے وی کیئر ہاؤس مکلی میں ایک شاندار آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع انتظامیہ، ہیلتھ افسران، اساتذہ، ہیلتھ ورکرز اور سول سوسائٹی سمیت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹھٹہ سے اپنے نمائندے ممتاز علی سمو سے۔ جی ممتاز۔ جی ہاں بالکل،
ठट्ठा में महकमा सेहत की जानब से रूबीला और खसरा जैसी मौलिक बीमारियों से बचाव के सिलसिले में एक अहम आगाही सेमिनार मुनक्कद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सैयद सफ्तर अली शाह ने बताया कि रूबीला और खसरा वो वायरल बीमारियां हैं जो बच्चों में नमूनिया, दिमागी सोजन, माजूरी और हत्ता के मौत तक का सबब बन सकती हैं, लेकिन बरवक्त वैक्सीनेशन के ज़रिए उनका खात्मा मुमकिन है। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत ठट्ठा आलमी मयार के मुताबिक 17 से 29 नवंबर 2025 तक खुसूसी मुहिम चला रहा है, जिसमें 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। उस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा शाकिर फ़हीम का कहना था कि आगाही के बगैर बीमारियों पर काबू पाना नामुमकिन है। वालिदैन बच्चों के सेहत पर किसी किस्म का समझौता ना करें। फोकल पर्सन डॉक्टर बख्त अली, सिविल सर्जन डॉक्टर यामीन शाह और दीगर माहिरीन ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो वैक्सीनेशन टीमों के साथ मुकम्मल तावन करें, क्योंकि ये वायरस एक मुतासरा शख्स से तेज़ी से दूसरे में फैल जाता है। सेमिनार में रूबीला और खसरा की अलामत, फैलाव और बचाव पर शुरा को तफसीली आगाही दी गई। जी ठट्ठा से अहम सियासी मजहबी खबर और शहर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर इंतज़ाम तारीखी जलसे का इनेकाद किया गया, जहां अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे से राशिद महमूद सोमरू समेत दीगर रहनुमाओं और उलमा कराम ने खिताब किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज़ अली समू से। जी मुमताज़। जी हाँ, बिल्कुल। हर शहर में जमीयतुल उलमा इस्लाम की जानब से एक बड़ा और तारीख़ी जलसा मुनक़्क़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए अवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। जलसा सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़्क़द हुआ, जिससे तंजीम के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो, मौलाना मोहम्मद ईसा समू और कारी कामरान ने खिताब किया। जलसे से खिताब करते हुए अल्लामा राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि जमीयतुल उलमा इस्लाम 27वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है, क्योंकि ये तरमीम मुल्क को संगीन माशी बहरान की तरफ धकेलने का बायस बन रही है। उन्होंने कहा कि सिंध खुसूसन ज़िला ठट्ठा मनशियात की बढ़ती हुई वबा से सख्त मुतासर है, जबकि महंगाई, बेरोज़गारी और हुकूमती बेअसी ने अवाम का जीना मज़ीद मुश्किल बना दिया है। राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि हुकूमत के पास ज़राअत के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी मौजूद नहीं, काश्तकारों को मुनासिब नरख नहीं मिल रहे और धान की फसल मालकान के रहम व करम पर छोड़ दी गई है, जो अफसोसनाक है। उन्होंने अज़म का इजहार किया कि जमीयतुल उलमा इस्लाम दीन, धरती और आइन के बालादस्ती के लिए अपने सियासी जमहूरी जदोजहद मज़ीद तेज़ करेगी और आवाम के हुकूक़ के लिए हर मैदान में आवाज़ उठाती रहेगी। जलसे में उलमाए इकराम ने भी खिताब किया और आवाम को मुल्क में बढ़ती हुई समाजी व माशी मुश्किलात से मुतल्लिक़ आगाही दी। जी आइए जानते हैं ओकाड़ा से हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक सर्च ऑपरेशन 30 मुलज़मान गिरफ्तार। ओकाड़ा डीपीओ राशिद हिदायत की ज़ेर क़यादत जुराइम पेश नासी के खिलाफ क्रैकडाउन, सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी कार्रवाइयाँ। मुलज़मान 30 गिरफ्तार। मुलज़मान गिरफ्तार, लाखों रुपए का माल मसरूक़ा बरामद। रावी से खतरनाक गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। 31 लाख रुपए की बरामदगी, तलाई ज़ेवरात, 4 मोटरसाइकिलें, 2 लाख नकदी, मोबाइल फ़ोन शामिल। 10 शराब फरोश गिरफ्तार। 194 लीटर शराब बरामद। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। डलियाना पुलिस ने नाजायज़ असला समेत मुलज़मान जावेद को गिरफ्तार कर लिया। 6 इश्तिहारी मुलज़मान गिरफ्तार। 2A और 4B कैटेगरी बी डिवीज़न पुलिस को कामयाब छापा। 8 कमारबाज गिरफ्तार। कमारबाजों से जुआ खेलने का सामान जब्त। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे ज़िले नामा निगार गुलाम शबीर अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटछोटा के इलाके खानपुर मंजवाला में डेवो कंपनी की जानिब से सफाई की शानदार मुहिम जारी है। सुपरवाइज़र तकी शाह, मुनीर अहमद खान रमज़ानी और असिस्टेंट सुपरवाइज़र सैयद अस्कर शाह की क़यादत में पूरे इलाके खुसूसन अस्पताल रोड को साफ़ सुथरा और चमकता बनाया जा रहा है। इलाका मकीनों ने सफाई के इस मिसाली इंतज़ाम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि पूरा खानपुर चमक रहा है। इस कामयाब सफाई मुहिम को सहारा स्कावेश मैडम ज़हरा बतूल, DVMC की मैनेजमेंट और तहसील मैनेजर मलिक मोहम्मद नदीम साहिब, ऑपरेशन मैनेजर फैज़ रसूल को जाता है, जिनकी दिन रात की मेहनत की बदौलत ये सब मुमकिन हुआ। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं खानपुर पब्लिक स्कूल
खानपुर का वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अरशद भुट्टा बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे पंजाब में वज़ीर आज़म पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने ये सफाई का अमला तैनात किया हुआ है। इसी तरह हमारे इलाके खानपुर में अच्छे तरीके से और रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब की ज़ेर क़यादत और मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत ये रोज़ाना की बुनियाद पर टीम आती है और अच्छे तरीके से सफाई करके जाती है। हम इससे मुतमईन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। शुक्रिया। डेरा गाजी खान तहसील को छूटा। आप खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदा गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील को छूटा मौजा नवा शुमाली में सफाई का निज़ाम बेहतरीन है, जिसके बाद इलाके में सफाई के इस भरपूर इक़दाम पर इलाका मुकीनों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामिया को सराहा। इनका कहना था कि बर वक्त सफाई और कचरे की निकासी से न सिर्फ माहौल साफ हो है बल्कि सेहत आमा के लिए भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जुमा के दिन मस्जिद और कब्रिस्तान की सफाई होती है। ये कारकर्दगी साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाब झलक है, जिस पर मुकामी इंतजामिया सुपरवाइजर कामरान खान बाजार और सफाई अमलादात की मुसिक हैं। कामरान खान बाजार की ड्यूटी से मौजा नवा शुमाली के लोग बहुत खुश हैं। इसका सहरा तहसील मैनेजर मलिक नदीम, ऑपरेशन मैनेजर फैज़ रसूल साहब को जाता है। ओकाड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं मियां सजाद हुसैन बोतला। फैकल्टी के प्रोफेसर सजाद मुबीन को बहैसियत वीसी 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की फैकल्टी और अमले ने प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन को वाइस चांसलर की हैसियत से इनके पहले साल की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश की है। वाइस चांसलर की ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में गुज़िश्ता साल के दौरान होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया और तालीमी इंतजामी अमले ने जामिया की बेमिसाल तरक्की के सफ़र की क़यादत करने पर वीसी की बसीरत और रहनुमाई को सराहा। इजलास खिताब करते हुए प्रोफेसर मुबीन ने कहा है कि इनके पहले साल को शफाफ तरक्की, मौसर हिकमत अमली, जदीद और इख्तराई हल, तेज़ रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दरीना मसाइल के फौरी हल, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नुमाया बेहतरी और इदारे पर अवामी एतमाद की बहाली ने नुमाया किया। उन्होंने इदारे की तरक्की और मुख्तलिफ अहदाफ की तकमील में फैकल्टी इंतजामी अमले की मुस्बत खिदमात और काविशों को सराहा। वाइस चांसलर ने इस अज़म का भी इज़हार किया कि वो आने वाले बरसों में भी अपने तरक्की पसंद विज़न को जारी रखेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात डिप्टी कमिश्नर नूरुलैन ने सिविल अस्पताल गुजरात में खसरा रूबेला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गुजरात डिप्टी कमिश्नर नूरुलैन ने अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में खसरा रूबेला वैक्सीनेशन मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर ताल मनम, MS डॉक्टर राना इम्तियाज़ अहमद, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद थे। महकमा सेहत के मुताबिक मुहिम 15 ता 27 नवंबर ज़िला भर में जारी रहेगी, जिसमें 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक रियाज फतेहाना MNA का तहसील हेडक्वार्टर कमालिया अस्पताल का दौरा। रियाज फतेहाना MNA ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया का हंगामी दौरा किया। MS अदील आरिफ ने खुशामदीद कहा। इस मौके पर राय उमर हयात खान मंच, मोहम्मद इमरान बट्टू और फयाज फतेहाना भी इनके हमरा थे। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर मरीजों की आदत की और अस्पताल में मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में मरीजों और इनके लवाकिन से दरियाफ्त किया। DPO टोबा टेक्सिंग इबादत निसार की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सिटी कमालिया मीर सफदर ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जा से चोरीशुदा 16 मोटरसाइकिल और भारी नकदी भी बरामद कर ली है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना सिटी कमालिया में। SHO थाना सिटी कमालिया की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मजीद मेरे साथ अमीर सफदर SHO थाना सिटी कमालिया मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी ये जो थाना सिटी कमालिया में जो है ना वो बाइक चोरी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ये काफ़ी जो है ना इधर वारदातें होती थी। मेरी टीम ने ये मिल के हमने ये गैंग ट्रेस किया है और उससे तकरीबन 16 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिनकी और 2.5 लाख रुपए इन मालियत जो है वो इन कैश में बरामद हुई है। तकरीबन ये 21 लाख की बरामदगी हो चुकी है। मज़ीद इंटेरोगेशन जारी है और जो चीज़ें अपना सामने आई हैं, जिन बंदों की बाइक चोरी हुई हैं उनकी FIR रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, उनको हम बाइक से हवाले कर रहे हैं। मज़ीद इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO अमीर सफदर का कहना है कि 16 बाइक
हमने रिकवर की हैं, जो असल मालकान के हवाले कर दी जाएंगी। कराची मिलीर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची रजाकबाद में इंतहाई खतरनाक हादसा, डंपर ने मुसाफिर वैन और रिक्शा को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाम बहक और 6 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए डंपर की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाम बहक हो गया। एनी शाहिद रोड हादसे में जख्मी होने वालों को हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। जामिया मस्जिद मेहरावाली जमालपुर में DSP हासिलपुर बख्त नसर खान की खुली कचहरी। जमालपुर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए इक़दाम जारी हैं और इसी सिलसिला के तहत DSP हासिलपुर बख्त नसर खान ने नमाज जुमा के मौका पर जामिया मस्जिद मेहरावाली में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर SHO थाना कायमपुर इशफाक अहमद भट्टी भी मौजूद थे। DSP हासिलपुर बख्त नसर खान ने शहरियों के मसाइल सुने और कानून के मुताबिक हल की दहानी करवाई। शुरका को पुलिस की जानिब से मुहैया की जाने वाली अवाम दोस्त पुलिस खिदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से बात करते हुए DSP बख्त नसर खान का कहना था कि मस्जिद में लोगों के मसाइल सुनना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मस्जिद में खुली कचहरी लगाने का मकसद आपके मसाइल आपके पास आकर सुनना और इनको हल करना है। शहरी माशरती इखलाकी बुराइयों और जराइम पेश नासिर से मुतालिक इत्तला दे सकते हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बोजदार मोहल्ला में छापा मारकर 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोशों में सतार पोस्तार, जहीर पोस्तार, बारी पोस्तार और जुनेद पोस्तार शामिल। पुलिस ने इत्तला मिलने पर बोजदार मोहल्ला में छापा मारा, भारी तादाद में मंशियात बरामद कर ली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी रहरकी का सालाना बजट 2025-26 81 करोड़ रुपए का बजट अक्सरियत राय से मंजूर होने के बाद पीपल्स पार्टी के मुंतखब कौंसलर्स ने शफाफियत पर सवालात उठाते हुए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट सिंध के हुक्म पर महकमा बल्दियात ने चेयरमैन टाउन कमेटी और TMO को नोटिस जारी कर दिए। बजट के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आए। टाउन कमेटी के मुंतखब जनरल कौंसलर 14 जबकि नामजद कौंसलर्स की तादाद 10 में से मजमूई तौर पर 14 अरकान ने बजट में मुबैना बेज़ाब्तियों और शफाफियत के फुकदान पर शदीद एतराज़ात उठा दिए। साबिका अखराजात और मराद के तफसीलात तलब नाराज अरकान का इल्ज़ाम साबिका बजट में TMO चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने तनख्वाहों, माहाना अखराजात और बिलों में मुबैना करप्शन करके अवामी फंड को बेदर्दी से लूटा। नाराज अरकान साबिका बजट के शफाफ इंक्वायरी और नए बजट पर मुफस्सिल बहस के बगैर किसी सूरत मंजूरी नहीं दी जाएगी ताकि हर वार्ड के शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात फराहम की जा सके। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई तहसील काजी अहमद के गवर्नमेंट गर्ल्स नासबाग काजी अहमद में तालका लेवल का और मंशियात के खिलाफ एक कंपटीशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें GBS स्कूल मस्कीन हाजी खान मलाद, GBS शाहपुर झानिया, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल नासबाग काजी अहमद के लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ऑन न्यूज़ से बात करते हुए साजा और तलबात ने कहा कि जैसा कि आज हमारा ये तालकी लेवल का एक प्रोग्राम है कलेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के तहत CBS कंपटीशन है। ये बच्चे जो है अपने स्कूल में से फर्स्ट से थर्ड पोजीशन लेकर आए हैं और आज जो हमारा ये प्रोग्राम है ये तालकी लेवल का है और इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होगा वो होगा जिले लेवल का और इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे आज इधर से जीत कर जिले लेवल के प्रोग्राम में जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि जिले लेवल पे भी ये बच्चे इंशाल्लाह परफॉर्म अच्छा करेंगे और वहाँ पे पोजीशन लेकर ये रीजन लेवल पे जाएंगे और वहाँ पर भी ये इनामात हासिल करेंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आज बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। सर आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो तालका लेवल कंपटीशन है करप्शन टॉपिक पे। ये पूरा नवंबर का महीना जो है वो गवर्नमेंट और नेब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट ने करप्शन के खिलाफ एक मुहिम के लिए मनाया गया। पहले जो था वो स्कूल लेवल पे कंपटीशन था, सब बच्चे जो अब पूरे तालके से अपने स्कूल से 3 पोजीशन लेके आज इधर आए। आज का जो कंपटीशन है वो तालका लेवल पे, इसमें 3 कैटेगरी रखी गई है। स्पीच में भी 3 है, इंग्लिश, उर्दू और सिंधी, और पोस्टर प्रेजेंटेशन में भी 3 कैटेगरियां हैं, इंग्लिश, सिंधी और उर्दू। इस तरह ऐसे कंपटीशन जो है वो भी तकरीबन 500 वर्ड का इंग्लिश, सिंधी, उर्दू में रखा गया है। इंशाल्लाह आज जो बच्चे इधर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी तरह अगर बच्चों में करप्शन से अभी से ही इनकार और उसकी बुराइयां जाहिर की जाए तो इंशाल्लाह आइंदा जो नस्ल आएगी वो करप्शन से पाक होगी और मजबूत पाकिस्तान का बुनियाद रखेगी। फॉर्माइयो जांच है ना मासा स्कूल में आज लेवल तालका लेवल जो कंपटीशन थियो उन में असा करप्शन के बारे में डिस्कस कई। करप्शन छा है, करप्शन की बुराई है, एक गंदगी है, असा का छात्र पूछो उनका छोड़ था जिन घर में गैसेस कौन के लिए जमा हुए हैं जो तक कौमों की बुनियादी हिला देता है, जिसके बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं, और वो मौजू है पाकिस्तान की तरक्की में एहतसाब का अहम किरदार। साथियों, कौमें उस वक्त मजबूत होती हैं जब एहतसाब कानून मजबूत होता है और कानून उस वक्त मजबूत होता है जब एहतसाब जिंदा होता है। साथियों,
पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, बेशुमार नेमतों से भरा। साथियों ऐं मुंहिंजा हमवतन दोस्तो अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां अव्हांजे साम्हूं हिकु अहिड़े मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण लाइ बीठी आहियां जेको न सिर्फ़ रुॻो असांजे मुल्क जी तक़दीर सां पर असांजे ज़मीर सां बि ॻंढियल आहे। करप्शन तव्हां लफ़्ज़ ज़रूरु ॿुधो हूंदो। करप्शन तॾहिं थो पैदा थिए जॾहिं मुल्क जा बाइख़्तियार माण्हू कानून जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदे पाण खे या कंहिं ॿिए माण्हू खे नाजाइज़ फ़ाइदो ॾियण सां उन सां खेसि पैसा या सूखड़ी मिलण जी उमेद आहे। जीअं आमतौर ते हिकु सिपाही ट्रैफिक जे कानून तोड़ण जी भिणकड़ी कंदा। मुझे नालो रिदा बेतुल लगाड़ी है। मां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शाहपुर जांजा में आई आहियां। जे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो गाज़ी अहमद में सोसाइटी जी कंफर्मेशन आहे त जैसा कि उन्हनि साहिबान ईंदड़ सभई मोअज़्ज़िज़ महिमान ऐं मुंहिंजा अज़ीज़ साथियो अस्सलाम वालेकुम। मां नाइला स्कूल GBLS मिस्किन हाजी खान मला काज़ी अहमद। जीअं त मुंहिंजो तक़रीरी उन्वान टेक्नोलॉजी ऐं शफ़ाफ़त। अॼु जो दौर डिजिटल जनाब सदर टेक्नोलॉजी पर इहो शिफ़ाफ़त ईमानदारी ज़िम्मेवारी पैदा करण जो ताक़तवर वसीलो आहे। जनाब सदर ऑनलाइन निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक अदायगी शिफ़ाफ़। मेरे प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिदा बेतुल है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और आज मैं आपके सामने एक निहायत अहम और संजीदा मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसने हमारे कौम और मुल्क और माशरे को जड़ों तक कमजोर कर दिया है। ये है मौजूद बदउनवानी मतलब करप्शन। बदउनवानी मतलब करप्शन, चाहे वो रिश्वत लेना हो या झूठ बोलना हो या किसी में पूरी कायनात है। मेरा नाम समीर स्कूल GBELS मिस्किन हाजी खान मला क्लास 8 में। आज की मेरी तकरीर का अनवान है बदअनवानी को ना कहो ईमानदारी को हाँ कहो। मोहतरम जजीज असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी बदलने के लिए कब सिर्फ एक लफ्ज़ काफी होता है नहीं। जैसा कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया खुदी का कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले। Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. What he sees cannot be seen. What he creates cannot be created. Honorable Chief Guest, respected teachers, honorable judges, and my dear friends, Assalamu alaikum. I am standing before you to speak on a topic that is eaten away at the root. खबर शामिल करते हैं। बहावलनगर के ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िर आला पंजाब के चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव और KPIs पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए ज़िला बहावलनगर में वीडियो लिंक के जरिए एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन ने की। इजलास में तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुतल्लिक़ा महकमों के सरबराहान ऑनलाइन शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के कारकर्दगी टारगेट्स की तकमील और अवामी सहूलत से मुताल्लिक़ इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के रिफॉर्मर्स एजेंडे और KPIs के बर वक्त तकमील ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन जिम्मेदारी है। हर अफसर अपने मुतल्लिक़ा शोबे में बेहतर कारकर्दगी दिखाए और अवामी सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को रिपोर्टिंग और फील्ड विजिट्स में तेज़ी लाने, शिकायत के फौरी इज़ाले और हुकूमती इक़दामात की मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। ज़िला बहावलनगर में तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में अहम इजलास हुआ। बहावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला बहावलनगर में जारी तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जामिया जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बोन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की और अपने शोबे में जारी तरक्याती मनसूबों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि तमाम तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए, मेयार कार पर कोई समझौता ना किया जाएगा और फंड्स की शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अफसरान को मौके पर जाकर मॉनिटरिंग तेज़ करने और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में बिला तातुल पेशरफ्त जारी रखने की तलकीन की। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक तरक्याती स्कीमों की बर वक्त तकमील अवलीन तरजीह है। इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया में कांस्टेबल मोहम्मद आमिर हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की हो गई। साथियों की मुबारकबाद। पुलिस फोर्स में खिदमात का एतराफ़ करते हुए कांस्टेबल मोहम्मद आमिर को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की के बाद पुलिस अफसरान और साथी एहलकारों ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी कारकर्दगी को सराहा। ज़रा के मुताबिक मोहम्मद आमिर ने पेशा वराना जिम्मेदारी, दियानतदारी और फ़र्शनासी के बायस हमेशा आला हुकाम के तमाद हासिल किया। इनकी तरक्की को अहले इलाका ने
भी खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर किया है कि वो इसी जज्बे और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। महकमा पुलिस की जानिब से कहा गया है कि फर्शनास और मेहनती एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रोहड़ी में सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के माने खसूसी के तौर पर डायरेक्टर एजुकेशन ज़िला सक्खर शहाबुद्दीन अंडर ने शिरकत की। स्कूल के बच्चों ने सिंध के गीतों पर झूमर पेश किए और मुख्तलिफ सकाफती टैबलोस पेश करके मेहमानों को महसूस किया। इस मौके पर खिताब करते हुए शहाबुद्दीन अंदर ने कहा है कि सिंध की सकाफत को दुनिया में आला मुकाम हासिल है। सिंधी टोपी और अजरक तिब्बी साइंस और मजहबी लिहाज से भी मर्द और औरत दोनों के लिए निहायत अहमियत रखती है, जबकि सिंध के सकाफती खेलें इंसान को जिस्मानी कुव्वत फराहम करती है। स्कूल के उस्ताज़ा में अल्ताफ़ हुसैन लशारी, अली असगर, अरबेलू महिसर, शुमाइला नदीम, जुल्फ़कार अली जानूरी समेत दीगर उस्ताज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक पेश की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।